أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین اور کفار کا تذکرہ فرمایا تھا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا. اس کا تذکرہ تھا کہ مکہ کے مشرکین اور کفار انہوں نے کفر کیا اور انہوں نے شرک کیا. تو آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخصوص بندوں کا تذکرہ فرمایا. قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة وینفقوا مما رزقناہم. اپنے مخصوص بندے کہ جو ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. انسان کے بدن کے اندر میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، زمین اور آسمان اور زمین کے اوپر میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھی ہے، ان تمام نعمتوں کا تذکرہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دعوت دیتے ہیں کہ اس خالق کائنات کے اوپر میں وہ ایمان لاوے اور اس کے احکام کو بجا لاوے اور اس کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقوں کو اپنی زندگی کے اندر میں اپنائے. آخر کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر میں ایمان لاوے. اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر میں ذکر فرمایا. اللہ الذی خلق السماوات والارض. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا. والارض. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے زمینوں کو پیدا کیا. وانزل من السماء ماء. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر سے پانی برسایا. فأخرج به من الثمرات. پھر اس پانی کے ذریعہ سے
अल्लाह तबारक व तआला ने फलों को निकाला, रिज़्क़न लकुम, ये तुम्हारे लिए रोज़ी है, वसख्खर लकुमुल फुल्का, और ताबे कर दिया तुम्हारे लिए कश्तियों को, लितजरिया फिल बहरी बिअम्री, ताकि ये कश्तियाँ समंदर के अंदर में अल्लाह के हुक्म से तुमको और तुम्हारे माल सामान को ले चलती है। वसख्खर लकुमुल अनहार, और तुम्हारे लिए नहरों को ताबे कर दिया। वसख्खर लकुमुश शम्स वल कमर दाइबैनी, और तुम्हारे लिए ताबे कर दिया सूरज को और चाँद को, दाइबैनी, जो हमेशा चलते रहते हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और ताबे कर दिया तुम्हारे लिए रात को और दिन को। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको वो सारी चीज़ें अता फरमाई जिसका तुमने अल्लाह तबारक व तआला से मुतालबा किया था, या जो चीज़ें तुमने अल्लाह तबारक व तआला से मांगी थी। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि, और अगर तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करो, या अल्लाह की एक नेमत को तुम शुमार करो, ला तुहसूहा, उसको तुम गिन नहीं सकते, उसका इहाता नहीं कर सकते और उसको शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान अलबत्ता बड़ा जुल्म करने वाला और बड़ा नाशुक्रा है। इन आयतों के अंदर में एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ऊपर में जो नेमतें नाजिल फरमाई उसके जिस्म के अंदर में उसका तज़किरा फरमाया। फिर इंसान के बदन को जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आसमान और ज़मीन के बीच की, उसका अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा फरमाया। बड़ी बड़ी नेमतों का ये तकाज़ा है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी बड़ी नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का बहुत ही ज़्यादा शुक्र बजा लाए, और उसका शुक्र बजा लाना इस शक्ल के अंदर में हो सकता है कि अल्लाह के ऊपर में ईमान लाए, अल्लाह के रसूलों के ऊपर में ईमान लाए, अल्लाह की उतारी हुई किताबों पर ईमान लाए, आखिर के अंदर में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लाया हुआ दीन है, जो कुरान और हदीस की शक्ल के अंदर हमारे और आपके पास में मौजूद है, उसके ऊपर में वो ईमान लाए। मक्का के मुशरिकीन की नाशुक्री का तज़किरा था कि उन लोगों ने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया बजा लाने के बजाय कुफ्र किया, नाशुक्री की और इनकार किया। तब अल्लाह तबारक व तआला कायनात के अंदर में जो बड़ी बड़ी चीज़ें इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की है उसका अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर तज़किरा फरमाया। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसमें आसमानों को और ज़मीनों को पैदा किया। कुरान पाक की दूसरी आयत से ये साबित होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमान पैदा फरमाए हैं, 7 आसमान पैदा फरमाए हैं। और कुरान पाक के अंदर में खुद मौजूद है व मिनल अर्दि मिथलहुन्ना, और ज़मीनें भी इतनी बनाई, यानी ज़मीनों को भी 7 ज़मीनें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई। व अंज़ल मिनस समाई माअन, और बेशक आसमान पर से अल्लाह ताला ने पानी बरसाया। आसमान सबसे ज़्यादा ऊपर है, ज़मीन नीचे है जिसके ऊपर में इंसान बसते हैं, और ज़मीन को भी काबिल काश्त बनाया और काबिल रहाइश बनाया। इतनी ज़्यादा सख्त ज़मीन नहीं बनाई लोहे की तरह कि इंसान का बसना मुश्किल हो जाए, और इतनी ज़्यादा नरम हवा और पानी की तरह नहीं बनाया कि इंसान का बसना मुश्किल हो जाए। जैसे आदमी हवा के ऊपर में मकान नहीं बना सकता, पानी के ऊपर में मकान बना नहीं सकता, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन को इतने लतीफ़ और नाजुक और बारीक बनाता जैसा कि हवा और पानी है तो इंसान का बसना जो है मुश्किल हो जाता। ऐसी बनाई अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को कि जो इंसान चाहता है।
अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस्समाई, और अल्लाह ताला ने आसमान पर से पानी बरसाया। यहाँ पर समा का लफ्ज़ है, व अंज़ल मिनस्समाई, आसमान से पानी बरसाया। आसमान से पानी नहीं बरसता, आसमान आज भी मौजूद है, आसमान से पानी नहीं बरसता, बादल से पानी बरसता है। और यहाँ पर उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखा हुआ है कि आसमान से मुराद यहाँ पर बादल है। ये बादल ज़मीन और आसमान के बीच के अंदर में होते हैं। व अंज़ल मिनस समाई, यानी बादल से अल्लाह तबारक व तआला ने पानी बरसाया। इंसान गौर फिक्र करे आसमान के अंदर में, और गौर फिक्र करे ज़मीन के अंदर में, और गौर फिक्र करे बादल के अंदर में। आगे भी 30वें पारे के अंदर में है कि तुम गौर फिक्र नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये आसमान कैसे बनाए, ज़मीन कैसे बनाई, पहाड़ कैसे बनाए, वगैरह वगैरह। उसके अंदर में गौर फिक्र करने की इंसान को अल्लाह तबारक व तआला दावत देते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द व अंज़ल मिनस्समाई। दुनिया की कोई भी चीज़ बगैर सुतून के कायम नहीं रह सकती। अगर कोई मकान बनावे, छत बनावे, स्लैब बनावे, तो बगैर सुतून के कायम नहीं रह सकती। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर में दूसरी जगह बयान फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन आसमानों को उठा रखा है, बेगैर आमदिन तरौनहा, बेगैर आमदिन, बगैर सुतूनों के, तरौनहा, तुम देखते हैं। कहाँ पर है सुतून? कहीं पर भी आसमान के लिए सुतून नज़र नहीं आता। बगैर सुतूनों के अल्लाह ताला ने उसको थामे रखा है। और ज़मीन भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाई है, उसके हुक्म से वो कायम है। और ज़मीन और आसमान के बीच के अंदर में बादल की शक्ल के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने बादलों को पैदा किया और उससे पानी बरसाया। फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, फिर उस पानी के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए बहुत से फलों को पैदा फरमाया। समरात, ये समरतन की जमा है। समरतन का माना फल का आता है। और जदीद अरबी के अंदर में, नई अरबी के अंदर में समरतन और समरात प्रोडक्शन को कहते हैं। कोई कंपनी है और कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से जो माल निकलता है उस माल को समरात कहते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। और पुरानी अरबी के अंदर में समरात का तर्जुमा जो वो फलों का किया जाता है। दरख्त के ऊपर में जो फल लगता है, ये दरख्त का माहसल और खुलासा और निचोड़ होता है। आदमी दरख्त उगाता है फल खाने के लिए, फल मिल गया तो फल का जो मंशा और मकसद था वो पूरा हो गया। इसी तरीके से आदमी कंपनी और फैक्ट्री लगाता है, उसके अंदर में चीज़ों को बनाता है, ये समरात कहलाती है। और इसी को प्रोडक्शन कहा जाता है। आगे कुरान पाक ने जो है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ के अंदर में बयान फरमाया हुआ है कि मक्का के रहने वालों को वर्ज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। अभी आपके सामने जो कुरान पाक की रुकू की तिलावत की गई, इसी के अंदर में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ के अंदर में है वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात लअल्लहुम यशकुरून। इस्माइल अलैहिस्सलाम को और हाजरा को वहाँ पर बसाया और चटियल मैदान जैसी शक्ल थी, कोई आबादी वगैरह नहीं थी। वहाँ पर छोड़ते वक्त अल्लाह तबारक व तआला से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी, उस दुआ के अंदर में ये भी है कि वर्ज़ुक़हुम मिनस्समरात, इनको फल अता फरमा ताकि वो शुक्र अदा करें। पुराने ज़माने के अंदर में समरात का तर्जुमा जैसा कि अभी अर्ज़ किया फलों का किया जाता था। मक्का मुकर्रमा के अंदर में दुनिया भर के फल अल्लाह तबारक व तआला पहुँचा देते हैं। दुनिया के किसी भी मुल्क में और किसी भी कोने के अंदर में पैदा होने वाला फल अल्लाह तबारक व तआला मक्का मुकर्रमा पहुँचा देते हैं। ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ का नतीजा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई। कबूलियत का ज़ुहूर 4000 साल के बाद में हुआ।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाफ़त और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वगैरह के लिए भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, जैसा कि पहले पारे के अंदर में है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी। 4000 साल के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल के अंदर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का ज़ुहूर हुआ। तो अब समरात का तर्जुमा पहले जो है फलों का किया जाता था, तो अल्लाह तबारक व तआला मक्का मुकर्रमा के अंदर में फलों को पहुँचाते हैं। जदीद तर्जुमा के एतबार से समरात का तर्जुमा है फैक्ट्री का प्रोडक्शन, कंपनी का प्रोडक्शन। दुनिया की कोई कंपनी ऐसी नहीं है कि जिसकी कंपनी का माल और सामान मक्का मुकर्रमा के अंदर में न मिलता हो। समरात का तर्जुमा अगर फलों का करते हैं तो दुनिया भर के फल मक्का मुकर्रमा के अंदर में मिलते हैं, और समरात का तर्जुमा अगर फैक्ट्री के प्रोडक्शन का करते हैं तो दुनिया भर की सारी चीज़ें वहाँ मक्का मुकर्रमा के अंदर में मिलती है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अख़रज बिही मिनस समरात, उस पानी के ज़रिया से अल्लाह तबारक व तआला ने फलों को निकाला। रिज़्क़न लकुम, ये तुम्हारे लिए रोज़ी है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को गौर व फिक्र करने की तरफ दावत देता है। अल्लाह तबारक व तआला गौर व फिक्र करने की तरफ दावत देता है। एक इंसान है, उसका एक ज़मीन का टुकड़ा है, आसमान पर से बरसने वाला बारिश का पानी एक किस्म का होता है, या उस ज़मीन के अंदर में कोई कुआं है जहाँ से वो पानी पिलाता है, या उस ज़मीन के पास में कोई नहर चलती है, नहर का पानी उसको वो पिलाता है, या किसी दूर दराज कुएं के ज़रिया से, पाइप लाइन के ज़रिया से अपनी ज़मीन के अंदर में पानी ला कर के वो ज़मीन के अंदर में पानी डालता है और पानी को ज़मीन में पिलाता है। पानी पिलाने वाला एक और पानी एक और ज़मीन एक, लेकिन उस ज़मीन के अंदर में जो जो दाने बोए जाते हैं तो अलग अलग शक्लों के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला अनाज गल्ला पैदा फरमाते हैं। अलग अलग किस्म के रंगों के फूलों को अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाते हैं। अलग अलग जायका वाले और अलग अलग मिठास वाले अल्लाह तबारक व तआला फलों को पैदा फरमाते हैं। ज़मीन एक है, काम करने वाला किसान एक है, पानी एक है, लेकिन अलग अलग रंगों का पैदा होना फूलों के अंदर में, और अलग अलग जायका और मज़ों का फलों के अंदर में पैदा होना, ये कुदरत है अल्लाह तबारक व तआला की, और ये पैदा करने वाला ये अल्लाह है। इसके अंदर में आदमी को चाहिए कि गौर व फिक्र करे। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, और इसके साथ साथ जो कायनात के अंदर में इंसान को गौर व फिक्र करने के लिए हुक्म दिया गया, वही हुक्म अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के अंदर में भी अल्लाह ने गौर व फिक्र करने के लिए हुक्म दिया। जितनी जितनी जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी तरक्की करती है, इतना इतना इंकिशाफ कुरान और हदीस के अंदर में जो बातें बयान की गई है वो ज़ाहिर होती है। आज से कई सालों पहले कोई नहीं जानता था कि इंसान के बदन के अंदर में कुछ रगें स्पेयर होती है, कुछ रगें स्पेयर होती है। हाथ के अंदर में भी स्पेयर रग होती है, पाँव के अंदर में भी रग स्पेयर होती है। कोई नहीं जानता था, उसका कोई काम ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको स्पेयर के अंदर में रखा हुआ था। अब जाहिर हुआ, और उन्हीं रगों को जब बाईपास सर्जरी की जाती है तो वो रगें जो इस्तेमाल की जाती है। जब इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया तो अल्लाह ताला ही जानता है कि इंसान के बदन के अंदर में उसने क्या क्या रखा हुआ है। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, सीधा सादा और मामूली ये मतलब समझ लें कि कायनात, आसमान और ज़मीन और चाँद और सूरज और सितारे और पहाड़ और समंदर वगैरह का जो निज़ाम है, कायनात का निज़ाम, ये कायनात का निज़ाम एक तरफ, और इंसान के बदन का जो निज़ाम है वो एक तरफ।
जितनी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात के अंदर में पैदा कर रखी है, वो सारी की सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के बदन के अंदर में पैदा कर रखी है। और इंसान के बदन के अंदर में वो मादे हैं जो ज़मीन के अंदर में वो मादे पाए जाते हैं, लोहा है, नमक है और किस्म किस्म की चीज़ें जो ज़मीन के अंदर में पाई जाती है, वो सारी चीज़ें इंसान के बदन के अंदर में पाई जाती है। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के बग़ैर और अपनी किताब के बग़ैर इंसानों को दावत देते हैं कि अल्लाह ने जो अक्ल दी हुई है, इस अक्ल के ज़रिया से कायनात की चीज़ों के अंदर में गौर व फिक्र करो, अपनी ज़ात के अंदर में गौर व फिक्र करो। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी ज़ातों के अंदर में भी अल्लाह के वजूद पर दलालत करने वाली, बतलाने वाली निशानियाँ पाई जाती है, तुम देखते नहीं हो, तुम गौर व फिक्र नहीं करते। तो इन चीज़ों के अंदर में गौर व फिक्र करने की अल्लाह तबारक व तआला इंसानों को दावत देते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीनों को पैदा किया और बादल से पानी को उतारा, फिर उससे फलों को पैदा किया। रिज़्क़न लकुम, ये तुम्हारे लिए रोज़ी है। वसख्खर लकुमुल फुल्क, दुनिया दो हिस्सों के अंदर में बटी हुई है, ज़मीन वाला हिस्सा और पानी वाला हिस्सा, या यूँ कहो कि बर और बहर, बहर समंदर वाला हिस्सा और बर ज़मीन का खुश्क हिस्सा। 1/3 हिस्से के ऊपर में ज़मीन है और 3/3 हिस्से के ऊपर में पानी है। पहले अल्लाह तबारक व तआला ने खुश्की का तज़किरा फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द, ज़मीन को पैदा किया, उसके ऊपर में आसमान पर से बादल से पानी बरसाया, फिर फलों को निकाला, इसका तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने समंदरों का तज़किरा फरमाया। जैसे अल्लाह ताला ने चाँद को, सूरज को, बादल को और रात को, दिन को, सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की खिदमत के लिए लगा रखा हुआ है और इंसान की खिदमत के लिए पैदा कर रखा है। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के अंदर में जो चलने वाली कश्तियाँ हैं या जो समंदरी जहाज़ हैं, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए मुसख्खर और ताबे कर रखा है। वसख्खर लकुमुल फुल्क, तुम्हारे ताबे कर रखा कश्तियों को, लितजरिया फिल बहरी बिअम्रिही, ताकि समंदर के अंदर में चले तो अल्लाह की हुक्म से तुमको ले चले। वसख्खर लकुमुल अनहार, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दिन को मुसख्खर और ताबे कर रखा है। 100 ग्राम का लोहा या 5 किलो का लोहा अगर पानी के ऊपर में रखते हैं तो नीचे डूब जाता है। इसी तरीके से बड़ी भारी अगर लकड़ी भी है, अगर उसको पानी के ऊपर में रखते हैं तो पानी के नीचे वो डूब जाती है। पत्थर है या टाइल्स है या दूसरी चीज़ें हैं, लोहा है वगैरह, जो है पानी के ऊपर में अगर रखते हैं तो वो पानी के अंदर में, नीचे तह के अंदर में चली जाती है, डूब जाती है। बड़ी बड़ी कश्तियों का समंदर के ऊपर में चलना और बड़े बड़े जहाज़ों का समंदरों के ऊपर में चलना, ये अल्लाह की हुक्म से है और अल्लाह की कुदरत से है। एक 5 किलो का या 500 ग्राम का लोहा हम पानी के ऊपर में उसको तैरा नहीं सकते हैं। लाखों टन और लाखों मन और हज़ारों और लाखों टन सामान लेकर के जो जहाज़ पानी के अंदर में चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ताबे कर रखा है। वसख्खर लकुमुल फुल्क, तुम्हारे लिए हमने कश्तियों को ताबे कर रखा है। लितजरिया फिल बहरी बिअम्रिही, ताकि वो ले चले समंदर के अंदर में अल्लाह के हुक्म से। वसख्खर लकुमुल अनहार, और तुम्हारे लिए दीनों को अल्लाह तबारक व तआला ने ताबे और मुसख्खर कर रखा है। पहले ज़माने के अंदर में ये खुश्की के अंदर में और ज़मीन के अंदर में चलने वाली सवारियाँ 3 किस्म की सवारियाँ थी। वल खैला वल बिगाला वल हमीरा लितरकबूहा, ये 3 किस्म के जानवर थे। वल खैल,
घोड़ा, वल बिगाल खच्चर, वल हमीर और गधे, ये 3 किस्म के जानवर थे जो इंसान की सवारियों के अंदर में इस्तेमाल होते थे। लितरकबूहा वज़ीना, ताकि तुम उनके ऊपर में सवार हो, और ये तुम्हारे लिए जीनत का भी सबब है। अरब लोग पहले जो है फ़ख्र करते थे कि मेरे पास में इतने घोड़े हैं, मेरे पास में इतने खच्चर हैं, मेरे पास में इतने गधे हैं, मेरे पास में इतने जानवर हैं, फ़ख्र करते थे। तो सवारी की भी चीज़ थी और जीनत की भी चीज़ थी। और उसके बाद में जो चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, अजीब व गरीब बयान फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते आगे, वयख्लुकु मा ला तअलमून, वयख्लुकु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ऐसी सवारियों को पैदा करेगा कि जिनको तुम नहीं जानते। अब आज से 1450 साल पहले ये कुरान पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, ये आयतें उतरी, और इस आयत में बताया कि सवारी के लिए जानवर 3 किस्म के हैं, घोड़े, खच्चर और गधे। और उस कुरान पाक के अंदर में 1450 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया बाद में, वयख्लुकु मा ला तअलमून, आइंदा ज़माने के अंदर में अल्लाह ताला ऐसी सवारियाँ पैदा करेगा कि तुम जानते नहीं हो, अल्लाह ही जानता है। ज़ाहिर बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम जो आज अगर देखते कि दुनिया के अंदर में क्या क्या सवारियाँ पैदा हो चुकी है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या सवारियाँ पैदा की, तो ये पेशिन गोई थी 1450 साल पहले। वयख्लुकु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ऐसी सवारियों को पैदा करता है और पैदा करेगा कि तुम नहीं जानते। अब कुरान की फसाहत और बलागत, अजीब व गरीब वो कुरान 1450 साल पहले सहाबा किराम को कह रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सवारियों को पैदा करेगा कि तुम नहीं जानते। वही कुरान पाक आज हमें और आपको ये कहता है कि वयख्लुकु मा ला तअलमून, अल्लाह ताला ऐसी सवारियों को पैदा करेगा कि तुम नहीं जानते। अब ज़ाहिर बात है कि आजकल मोटर और कारें और हवाई जहाज़ और समंदरी जहाज़ और रेलगाड़ियाँ और न मालूम मेट्रो ट्रेन और ये वो वगैरह 300 की स्पीड और 700 की स्पीड के अंदर में भी ट्रेन गाड़ियाँ चलने लगी, और मिकनातीसी ताकत के मुताबिक लोई चुंबक के ज़रिए से वो गाड़ियाँ जो गोया एक पटरी के ऊपर में वो उड़ती है। 1 घंटे के अंदर में 700 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ इंसानों ने पैदा की। तो आज कुरान हमें और आपको ये कहता है कि अगर ये सवारियाँ तुमने देख ली, वयख्लुकु मा ला तअलमून, आइंदा ज़माने के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सवारियाँ पैदा करेगा कि तुम नहीं जानते। वयख्लुकु मा ला तअलमून, माँ के अंदर में अजीब व गरीब किस्म का मादा और सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है। आज से तकरीबन 40 साल पहले या ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल पहले मोबाइल का वजूद नहीं था। सऊदी अरब के अंदर में भी नया नया वो पेजर आया था, पेजर इतना सा, और बेजर बोलते थे, और पट्टे के अंदर में लगाते थे और बड़े फख्र से कहते थे कि हिंदी बेजर, हिंदी बेजर, मेरे पास में पेजर है। अब पेजर में होता क्या था, कोई आदमी अगर उसको फ़ोन लगाता उसके घर पर, तो फ़ोन लगाने वाले का नंबर उस पेजर के ऊपर में आता था। फिर बाज़ार के अंदर में अगर है तो फिर वो टेलीफोन वाले को ढूंढता था, या कॉइन्स वाला 10 पैसे वाला जो होता था उससे उस नंबर के ऊपर में वो फ़ोन करता था। ये बेजर था। अब मोबाइल आ गया और वीडियो कॉल। अभी हम हज के ज़माने के अंदर में चंद मशाइख से हमारी मुलाकात हुई तो बता रहे थे वीडियो कॉल के बारे में। वीडियो कॉल कह रहे थे कि ये मोबाइल जो है अल्लाह की इस ज़माने के अंदर में सबसे बड़ी नेमत है। मोबाइल जो है अल्लाह ताला की इस ज़माने के अंदर में सबसे बड़ी नेमत है। तो उन्होंने यही कहा था कि भी ये माल की तरह है। माल अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी नेमत है। अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए और गलत इस्तेमाल किया जाए तो यही माल वबाल बन जाता है। इसी तरीके से जो मोबाइल है इसका इस्तेमाल अगर सही है तो अच्छी चीज़ है, और अगर गलत इस्तेमाल है तो वो बुरी चीज़ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़माने के अंदर में ये जो मोबाइल की शक्ल के अंदर में जो चीज़ पैदा की, आदमी यहाँ बैठा हुआ है और अमेरिका और इंग्लैंड और अफ्रीका और मक्का और न मालूम कहाँ कहाँ जो है वो
कॉन्फ्रेंस के अंदर में जॉइंट फैमिली के साथ में बातें कर रहा है, कोई अमेरिका में से है, कोई यहाँ पर कड़ी खिचड़ी का जो है वो ये बतलाता है, चमचा बतलाता है कि ले खाना है, कोई कहता है कि यहाँ रोज़ा खुल गया है, ले भज्जिया खाना है, बताते हैं ये क्या है। आज कुरान पाक कहता है कि वयखलुकु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ऐसी ऐसी चीज़ों को पैदा करेगा कि तुम नहीं जानते हैं। जाहिर बात है कि पुराने ज़माने के लोगों के सामने अगर ये मोबाइल चीज़ रख दिया जाए, कहा कि देखो ये आदमी हमारा लड़का अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ये तुमसे बात करना चाहता है, वो ताज्जुब करेंगे ये कैसे हो सकता है। तो आइंदा भी ऐसी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेगा, वयखलुकु मा ला तालमून, तो तुम जानते नहीं हो। इसमें गौर फिक्र करने की चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला दावत देते हैं कि बड़ी बड़ी मखलूक को हमने तुम्हारे ताबे कर दिया, मुसख्खर कर दिया। वसख्खर लकुमुल अनहार, और इसके अलावा जो नहरें हैं, इन नहरों को भी हमने तुम्हारे ताबे कर दिया। वसख्खर लकुमुस शम्स वल कमर, और अल्लाह ताला ने ताबे कर दिया तुम्हारे लिए सूरज को और चाँद को। दाइबैनी, दोनों जो है लगे हुए हैं खिदमत के अंदर में, दाइबैनी लगे हुए हैं। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ताबे कर दिया रात को और ताबे कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने दिन को। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमू, और अल्लाह ताला ने तुमको वो सारी चीज़ें अता फरमाई जिसका तुमने उससे मुतालबा किया, जिसका तुमने उनसे सवाल किया। इस पर उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी चीज़ें अता फरमाई है, अगरचे यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वह आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु, अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें तुमको दी जो तुमने उससे मांगी। तफसीर बैदावी के अंदर में अल्लामा बैदावी ने लिखा है कि यहाँ ये तर्जुमा करना चाहिए कि जो तुम मांगना चाहते, मांगी नहीं तुमने, तुम मांगना चाहते और तुम्हारे काम की होती, तुम्हारे ज़रूरत की होती, आइंदा ज़माने में तुम्हारे काम में आने वाली होती, उन तमाम चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता किया। इंसान का वजूद कहाँ मांगा था इंसान ने अपने वजूद का मुतालबा नहीं किया था अल्लाह ताला से, कि इंसान ने मुतालबा किया अल्लाह से कि मुझे वजूद बख्शा जाए और मुझे दुनिया के अंदर में भेजा जाए, नहीं मांगा था। इंसान के बदन के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं, इन तमाम चीज़ों का भी मुतालबा इंसान ने अल्लाह ताला से नहीं किया था, बल्कि इंसान की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों को, ज़मीनों को, समंदरों को, पहाड़ों को, फलों को, अनाज गल्ला वगैरह को जो पैदा किया, कहाँ इंसान ने मांगा था? इंसान ने नहीं मांगा था। अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ अता फरमाई, जो मांगी वो भी अता फरमाई, और जो मांगने के लायक और काबिल थी वो भी मांगे बगैर अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। ये ज़ाहिरी नेमतें हैं, और बातिनी और रूहानी नेमतें ये हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको ईमान की दौलत से नवाजा, और हमें और आपको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर में पैदा फरमाया, कि जिस उम्मत के अंदर में पैदा होने के लिए अगली उम्मतों ने और अगले अंबिया अलैहिस्सलाम ने तमन्ना ज़ाहिर फरमाई थी, बगैर मांगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान की दौलत से नवाजा और कुरान की दौलत से नवाजा। वइन तउद्दू नेअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की एक नेमत को शुमार करो, ला तुहसूहा, तुम उसको गिन नहीं सकते और उसका तुम शुमार नहीं कर सकते। नेअमतल्लाहि, एक नेमत, मिसाल के तौर पर इंसान के बदन के अंदर में दिमाग है, दिमाग किस काम के लिए आता है? या आँख है, या हाथ है, या पाँव है, जो भी इंसान का जो उज़्व है वो एक एक नेमत है, उसको शुमार नहीं कर सकते। बल्कि उलमाए किराम ने यहाँ पर ये लिखा कि तंदुरुस्ती का होना ये अल्लाह की नेमत है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो अल्लाह ने दे रखी वो तो नेमत है, और इसके अलावा तकलीफ़ों से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, मुसीबतों से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, बीमारियों से अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, ये भी अल्लाह की नेमत है। बीमारियों से जो हिफाजत फरमाई ये भी अल्लाह की एक नेमत है। एक इंसान की एक रत बंद हो जाती है
तो उसकी वजह से न मालूम कैसा वो अपाहज हो जाता है। दिमाग के अंदर में अतिब्बा ने लिखा हुआ है और जदीद साइंस भी इसका इकरार करता है कि दिमाग के अंदर में 10 लाख रगें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा कर रखी है। इंसानी दिमाग के अंदर में 10 लाख रगें अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी है और ये 10 लाख रगें जो है अलग अलग जगहों के अंदर में इस्तेमाल होती है। अलग अलग जगहों में आदमी हंसता है, खुशी की खबर सुनता है, गमी की खबर सुनता है, अच्छी चीज़ देखता है, बुरी चीज़ देखता है, तो दिमाग की रगें जो है वो इस्तेमाल होती है। मुख्तसर एक बात और अर्ज़ कर दूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस का तख़त मंगवाया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जो थे वो मुल्क शाम के अंदर में थे, सीरिया के अंदर में, और बिल्किस का जो तख़त था वो यमन के अंदर में था। कम से कम 3-4 हज़ार किलोमीटर के फासले के ऊपर में था। मुतालबा किया कि बिल्किस आ रही है, करीब के अंदर में आ गई है, 4 फरसक की दूरी के ऊपर में थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया था कि वो उसका तख़त लाया जाए। तो जिन्नातों के अंदर में से एक बड़ा ताकतवर जिन्नात जो था इफरीत आजकल नई अरबी के अंदर में जैक को कहते हैं। 4 व्हील के नीचे जो जैक लगाते हैं, ट्रक के नीचे, कार के नीचे, उस जैक को इफरीत कहते हैं। वो पूरे ट्रक को और पूरी गाड़ी को उठा लेता है। वक़ाल इफरीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। बड़ा ताकतवर जो जिन्नात था उसने कहा कि तुम्हारी मजलिस ख़त्म होने से पहले मैं ले आऊँ। मजलिस ख़त्म होने के अंदर में फजर के बाद में मजलिस लगती थी, ज़वाल तक मजलिस रहती थी। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये तो तकरीबन यहाँ करीब में आ चुकी है, उसके आने से पहले मुझे चाहिए। फिर उसके बाद में कहा वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब। कोई आलिम था जिसके पास में किताबुल्लाह का इल्म था, उसने कहा अना आतिका बिही, मैं बिल्किस का तख़त में ले आता हूँ, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। तरफ पलक को कहते हैं, तुम्हारी पलक झपकने से पहले, क़ब्ल। अब इसके अंदर में कितना वक्त लगेगा? सेकंडों के अंदर में। यूँ कहते उलमाए किराम के उसके पास, जानने वाले के पास में इसमें आज़म का इल्म था और उसके ज़रिए से वो दुआ मांगता था तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो चीज़ जो मांगी हुई चीज़ होती थी वो पूरी कर देता था। खैर, अब मैं जो बताना चाहता था दिमाग की रगों के बारे में, तो यहाँ इल्म जिसके पास में किताब का इल्म था उसने कहा कि पलक झपकने से पहले मैं ले आऊँ, पलक झपकने से पहले, क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफुक। अल्लामा इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि पलक झपकने के अंदर में देर लगती है, पलक झपकने के अंदर में देर लगती है। और इसकी तशरीह और तफसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि दिमाग की कुछ रगें हैं, वो रगें खींचती है जिसकी वजह से पलक बंद हो जाती है। फिर दूसरी रगें, वो रगें नहीं, एक कुछ रगें खींची जिसकी वजह से पलक बंद हो गई, फिर दूसरी रगें खींचती है जिसकी वजह से पलक खुल जाती है। तो इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि इसके अंदर में भी देर लगती है। ये जो अहले क्या कहते हैं, वो इल्म वाला जो था जिसने कहा था कि मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँ। अब यूँ समझो कि पलक बंद होती है 5 सेकंड या 2 सेकंड, फिर खुलती है दूसरे 2 सेकंड, यानी 4 सेकंड समझो, कम से कम 4 सेकंड। 4 सेकंड के अंदर में पलक बंद होती है और पलक खुलती है। वो कह रहा है, दावा करता है कि तुम पलक बंद करो और खोलोगे तो वो तख्त शाही जो है बिल्किस का तख्त तुम्हारे सामने पड़ा हुआ होगा। ये है इल्म की ताकत और इल्म की कुदरत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सारी चीज़ों को अता फरमाया। व आताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूह व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर एक अल्लाह ताला की नेमत का तुम शुमार करो और इहाता करो तो तुम उसको शुमार नहीं कर सकते। इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, बेशक
इंसान जो है वो बड़ा जुल्म करने वाला, बड़ा नाइंसाफ और बड़ा नाशुक्रा है। इससे पहले कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के अंदर में ये इंसान की सिफत बयान की थी अल्लाह तबारक व तआला ने कि वो बड़ा सब्र करने वाला है और बड़ा शुक्र करने वाला है। इसी सूरह इब्राहिम ही के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया था कि इंसान बड़ा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूरिन। अल्लाह तबारक व तआला ने जुल्मात से रोशनी की तरफ निकाला, कुफ्र से ईमान की तरफ निकाला, और अल्लाह ताला फरमाते कि वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों के सामने ज़माने माजी की खबरें बयान करो, अल्लाह की नेमतें बयान करो। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूरिन, बेशक इसके अंदर में बड़ी निशानियां हैं हर बड़े सब्र करने वाले के लिए और बड़े शुक्र बजा लाने वाले के लिए। सब्बार और शकूर कहा था। अब जब आदमी अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ारुन, बेशक इंसान बड़ा जुल्म करने वाला है, नाइंसाफ करने वाला है और बड़ा नाशुक्रा है। यहाँ तक अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह इब्राहिम के अंदर में तौहीद की और रिसालत की बातों को बयान किया। पहले दिन अर्ज़ किया था कि इस सूरत का नाम सूरह इब्राहिम इसलिए रखा गया है कि इसके अंदर में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र और तज़किरा फरमाया है। आइंदा आयत के अंदर में अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र फरमाया है। आइंदा कल आगे अर्ज़ करेंगे इंशाअल्लाह।